بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں قائم احتشام۔ ناظرین، بلدیاتی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جو عام عوام کے گلی محلے اور نچلے لیول تک کے مسائل کو بخوبی حل کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خاص طور پر پنجاب میں ہر دفعی، ہر سال ہی اور ہر ٹینیور میں ہی جو ہے وہ چاہے جس کا بھی ہو، وہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن کی طرف جانے سے ذرا ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے۔ اس میں کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز پاور ڈسٹریبیوشن نہیں چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہی یہ معاملات رہیں، ہمارے ہاتھ میں ہی جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کے جو کام ہیں، جو بجٹ ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم عام عوام کے پاس جائیں گے، ہم جو ہے وہ 2015 میں منتخب ہونے والے بلدیاتی نمائندگان کے پاس جائیں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کتنے ضروری ہیں بلدیاتی ادارے، بلدیاتی نمائندے، بلدیاتی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو چلتے ہیں پھر عوام کی جانب، چلتی ہیں بلدیاتی منتخب ہونے والے نمائندگان کی جانب۔ جی ناظرین، اپنے پروگرام کے سلسلے کا باقاعدہ ہم جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک اہم ایشو ہے جس پر جو ہے وہ ہر حکومت ہمیں اس کو نظر انداز کرتی نظر آئی ہے۔ اہم ایشو بلدیاتی ادارے جو ہے وہ اس وقت ضروری ہیں، ایک عوامی حکومت کا ہونا ضروری ہے جو عوامی لیول پر جو ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی پر جا کر اور گراؤنڈ پر جا کر جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کر سکے۔ ہمارے ساتھ چیئرمین محمد افضل ڈوگر صاحب موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی ظاہری سی بات ہے، یہ جو ایک ایکسپیرینس پرسن ہوتا ہے اس کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا، یا جو ایک یونین لیول تک چیئرمین ہوتا ہے اس کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے اپنے معاملات، ایک جو غریب طبقہ ہے یا جو ایک عام شہری ہے، کس طرح ہم نے اس کے مسائل جو ہے وہ حل کرنے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد افضل صاحب، ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی مزاج ہے سر آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ چلیں ماشاء اللہ۔ سر یہ بتائیں کتنے ضروری ہیں بلدیاتی ادارے، اور کتنا ضروری ہے بلدیاتی انتخابات تاکہ ایک عوامی حکومت آئے جو عوام کے مسائل حل کرے؟ دیکھیں، جو ممبران قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے ہاؤس میں بیٹھ کے قانون سازی کرنا۔ تو اصل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو مسائل ہیں، وہ ہوتے ہیں مقامی سطح پر۔ تو ہمارے علاقوں میں جب ہم چیئرمین تھے، ہم نے یہاں پر بے شمار کام کروائے، کروڑوں روپے کا فنڈ لگوایا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، فار ایگزامپل ہمارے علاقے میں یہ سوئی گیس کا مسئلہ تھا، تو ہم نے اپنی قیادت کو کہہ کے 5.5 کروڑ کی لاگت سے یہاں پر ٹی بی ایس منظور کروایا۔ اس کے علاوہ کروڑوں روپے پہ ہم نے لگا کے یہ سیوریج کا نظام درست کیا، کیونکہ جو مسائل ہم جانتے ہیں وہ ایم این اے، ایم پی حضرات نہیں جانتے۔ تو بلدیات کا ہونا اشد ضروری ہے۔ پچھلی گورنمنٹ گئی ہے ان کی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے بالکل کوئی کام نہیں کیا۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کا وزٹ کریں، جب ہم تھے چیئرمین اور بلدیات بحال تھی، تب ہمارے جو پارک ہیں وہ ماشاءاللہ بہت شاندار تھے، ہمارے روڈ بنے ہوئے تھے، ہماری سڑکیں جو وہ بڑی بہترین تھی۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو سیوریج کا نظام ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ ہمارا پانی ہے صاف پینے کا، اس میں ہمارے سیوریج کا، ہمارے علاقے میں سیوریج کا نظام اس قدر خراب ہے کہ پینے کے پانی میں سیوریج کا پانی مل کے آ رہا ہے، اس حد تک حالات۔ ہاں، تو جس کی وجہ سے علاقے میں تفن پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں جو شرح آپ دیکھ لیں، بیماری کی جو شرح ہے وہ ہمارے علاقے میں زیادہ ہے۔ تو اشد ضرورت ہے بلدیاتی ادارے ہر صورت بحال ہونے چاہیے۔ جب عدالت کی طرف سے حکم آیا، دوبارہ جو ہے وہ بلدیاتی ادارے بحال کر دیے گئے، لیکن ان کو فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ فنڈز جاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو محض ایک نام کے ہی رہ گئے نا، کیونکہ جب ان کے پاس فنڈ نہیں ہوگا تو وہ کیسے عوام پر جو ہے وہ لگائیں گے، ان کے مسائل پر لگائیں گے؟ دیکھیں، جب انہوں نے بلدیاتی ادارے بحال کیے نا بعد میں، تو پھر انہوں نے ہمیں فنڈ ریلیز نہیں کیے۔ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں مسائل بہت زیادہ تھے، لیکن ہم اپنی ایفرٹ سے، ہم اپنی کوشش سے، ہم نے کوشش کی، مقامی انتظامیہ سے میٹنگیں کی، مختلف اداروں سے میٹنگیں کی، لیکن کافی حد تک ہم نے ان پہ قابو پا لیا تھا جو مقامی مسائل تھے۔ تو اب بھی اگر بلدیاتی ادارے نہیں ہوتے، بحال نہیں ہوتے، یا نئے الیکشن نہیں ہوتے، ہمارا تو دیکھیں نا، انہوں نے ہمارے 2 سال ہمیں پہلے ہی انہوں نے ہمیں وہ فارغ کر دیا تھا۔ اب بھی اگر بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اچھے طریقے سے
جو نا علاقے کی یا محلے کی یا شہر کی خدمت کر سکتے ہیں. اچھا اس میں کہیں نہ کہیں قصوروار جو ہے وہ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہیں کہ وہ پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہ رہے, اور وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ جو پاور ہے وہ ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں جائے جو کہ ایک مخصوص عوام میں سے ہو یا عوام میں سے ہو یا ان کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہو. کیا یہ اس راستے میں رکاوٹ یہ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, وہی پاور کی ڈسٹریبیوشن نہیں چاہتے؟ دیکھیں جی, جب نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی تھی نا تو ہمیں پورے اختیارات تھے, ہمیں پورے فنڈ ملتے تھے, اور ہم نے اپنے علاقے میں چیئرمین ہوتے ہوئے, اور جب نون لیگ کی حکومت تھی, ہم نے بلدیاتی اداروں میں بے شمار کام کروائے, اور تاریخ گواہ ہے, ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ جتنے کام نون لیگ کے دور میں ہوئے ہیں اور جتنے ہم نے سروس نون لیگ کے دور میں کیا نا, وہ اس کے بعد ہم نے وہ نہیں رول ہم ادا نہیں کر سکے. اور اب بھی امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں, تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بڑے بہتر طریقے سے اپنے علاقوں میں خدمت کریں گے. لیکن پھر بھی بلدیاتی ادارے کا ہونا بہت ضروری ہے. بلدیاتی اداروں کے علاوہ یہاں پر ہمارے مقامی مسائل بالکل حل نہیں ہو سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ حل نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ایک ایم پی اے ہوتا ہے یا ایک ایم این اے ہوتا ہے, اس کے پاس ایک وسیع حلقہ ہوتا ہے, اور وہ اس حلقے میں سے ہر انفرادی جو ہے وہ انفرادی طور پر ہر کسی کے جا کے جو ہے وہ مسائل حل نہیں کر سکتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا یہ, چونکہ پہلی بات تو یہ اس کا کام نہیں ہے, اس کا کام جو ہے وہ لیجسلیشن کا ہے, وہ قانون لا میکنگ کرے. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ ایک جو سی سی چیئرمین ہے وہ جو ہے جب اپنی سی سی میں موجود ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے انفرادی مسائل حل کر سکتا ہے, ایک بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ جو سابقہ حکومت گزری جس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کے وقت پورا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا تھا, تو ان میں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں آخرکار جو ہے وہ کتراتے تھے بلدیاتی اداروں کو فعال کرنے؟ دیکھیں جب نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی تھی نا تو جو ایم پی ایم این حضرات تھے نا وہ تھے مقامی, ہمارے حلقوں سے ان کا وہ ریلیٹڈ تھے, ان کو ہمارے مسائل کا بھی پتہ تھا. اب بدقسمتی سے جو ہمارے یہاں پر منتخب ہوئے ہیں ایم این اے اور ایم این اے حضرات, ان کو تو ہمارے چیئرمینوں کے ناموں کا نہیں پتہ. ہم تقریباً 47 چیئرمین ہیں این اے کے حلقے میں. میرا نہیں خیال کہ ہمارے ایم این اے یا ایم پی اے کو جو موجود ہیں ان کو ہمارے چیئرمین کا نہیں پتہ وہ علاقے کے مسائل کیسے حل کریں گے. تو اس لیے ہم تو یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے, وزیر اعظم پاکستان سے, کہ بہترین اگر آپ رزلٹ چاہتے ہیں, اگر واقعہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی خدمت کریں, تو بے حد ضروری ہے کہ بلدیاتی اداروں کو, یعنی آپ سمجھتے ہیں عوامی خدمت کے لیے بلدیاتی ادارے ضروری ہیں؟ بالکل. اس کے السلام علاوہ علیکم. وعلیکم السلام. سر اپنا ذرا تعارف کروائیے گا. ملک گلزار احمد, جی سی سی 95. اچھا سی سی 95. سر یہ بتائیں کہ ہم عموماً ایک چیز دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ فال کرنے کے بعد بھی ان میں اس طرح کی جو ہے وہ پاور ان کو نہیں دی جاتی, ان کو بجٹس جاری نہیں کیے جاتے. جب ظاہری سی بات ہے بجٹ ہی جاری نہیں کرنے, جب آپ نے جو ہے وہ پاور کی ڈسٹریبیوشن ہی نہیں کرنی, تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اداروں کی طرف جانے کی. تو کیوں آخرکار حکومتیں جو ہے وہ ذرا کتراتی ہیں بلدیاتی اداروں کو فال کرنے؟ سر جیڑی کہ پہلی گورنمنٹ آئی نا پی ٹی آئی دی, انہوں نے تو اس علاقے دا اس پورے فیصلہ آباد ضلع دا بیڑا گرک کر کے رکھتا. ساڈے ہر گلی محلے چ کوڑا, سیوریج دا, میٹھے پانی دا مسئلہ, گیس دا مسئلہ سی. اے تے دوبارہ ساڈے آبا صاحب میاں طاہر جمیل صاحب انہوں نے آن کے کوئی تھوڑا محکمے کو کم کروایا. تے اسی چاہنے ہیں کہ بلدیال دا ہونا بہت ضروری ہے, بلدیاتی اداروں کا ہونا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. کہ پارٹی لیول کی جو سطح ہے یا پارٹی کو جو ہے وہ مضبوط کہیں نہ کہیں ایم پی اے ایم این اے سے زیادہ جو ہے ایک یو سی میں وہاں کا چیئرمین بناتا ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ عوام میں براہ راست جو ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے, عوام میں موجود ہوتا ہے, اور وہ وہاں پر سے جو ہے وہ ایم پی اے ایم این اے کو بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب کروا سکتا ہے اگر ان کو فال کیا جاتا ہے. تو اس میں جو پارٹی یہ بلدیاتی سیٹ اپ لاتی ہے یا بلدیاتی ادارے الیکشنز کرواتی ہے اور وہاں پر اگر وہ اکثریت حاصل کرتی ہے تو اس سے پارٹی کو تو فائدہ ہو سکتا ہے نا, کیونکہ انہی کا منشور ہی آگے پھیلے گا. ظاہر ہے جی. دیکھیں اگر بلدیاتی ادارے ہمارے بحال ہوں گے, بلدیاتی الیکشن ہوں گے, ہم بلدیات کی سطح پر جب لوگوں کی خدمت کریں گے تو اس کا فائدہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہوگا اور وفاقی حکومت کا بھی ہوگا. تو ضروری ہے. رمضان پیکج دیکھ لیں, وہ ابھی آیا ہے, تو ہم بہت ساری لوگوں کی, غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے حلقے میں ابھی سے جو وزیر اعظم صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی
यूनियन लेवल पे जो सीवरेज के मसाइल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मैं और खराज तहसीन पेश करता हूँ पंजाब हुकूमत को भी अभी मैं एक काम का इफ्तिताह करके आया हूँ, तो जो मरियम नवाज साहिबा ने जो उनका मिशन है, जो उनका विज़न है, उस पर काम शुरू हो गया है। यानी आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी? इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो सीसी चेयरमैन मौजूद थे मोहम्मद अफजल साहब। इनसे जो है वो हमारी बातचीत हुई और ये कहते हैं कि अगर वाकई एक हकीकी तब्दीली आप लोगों ने लानी है, हकीकी बेहतरी लानी है, हकीकी एक अच्छा निज़ाम लाना है, तो उसके लिए बल्दियाती इदारों का होना नहायत ज़रूरी है। क्योंकि बल्दियाती इदारे ऐसी हुकूमतें हैं, बल्दियाती इदारे ऐसे लोग होते हैं जो अवाम में से जो है वो उठ कर आते हैं और अवामी हुकूमत इसको हम कह सकते हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि बल्दियाती इदारे जो है वो उनकी बेहतरी के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो चलते हैं फिर दीगर अवाम की। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं मज़ीद। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनको जब 2015 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तब जो है वो अवाम ने अपना रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब किया था। ये वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो अवाम के दरमियान रहते हैं, अवाम के मसाइल को जानते हैं और ये रास्ते भी जानते हैं कि कैसे जो है वो हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। एक MP MNA ज़ाहिर सी बात है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कि वो बुनियादी मसाइल जो है वो अवाम के हल करे। उनका काम लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेशंस है और वो लेजिस्लेशन ही करते हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ज़ाहिर सी बात है हमने जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाते और हम ही नहीं जो है वो ऐसा एक सिस्टम है कि MP MNAs जो है वो डरते हैं बल्दियाती इदारे फॉल होने से। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं मज़ीद। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना तारफ़ ज़रा करवाइएगा। जनाब मियाँ महमूद अली तारक, मेरा नाम सोशल वर्कर हूँ और उम्मीदवार जनरल कौंसलर उम्मीदवार भी हूँ। अच्छा सर, कितनी कोई ज़रूरी है बल्दियाती इदारे तरक्की के लिए, एक मिडिल क्लास तबके के मसाइल को हल करने के लिए? सर बल्दियाती इलैक्शन बहुत ज़रूरी है जो हालात जा रहे हैं और मैं सब तो पहले तो नून लीग को खराए मुबारकबाद देता हूँ जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई अब मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मैं सब लोग मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मेरी बल्दियाती इलैक्शन बहुत ज़रूरी है। साढ़े इलाके दे विच ग्राउंड कोई नहीं है, ग्राउंड की असल ज़रूरत है, तलीम की असल ज़रूरत है। ये सारे बल्दियाती इलैक्शन जित के आउणगे तो ये इलाके नूं अच्छे तरीके नाल अपने चला सकणगे। इसलिए साढ़े वास्ते ये अभी मैं गवर्नमेंट की अपील करता हूँ भी बल्दियाती इलैक्शन बहुत ज़रूरी है। इस टाइम तो सड़कें टूट फूट का शिकार आ, फिर स्कूल का मसले बड़े मसले मसाइल आ, फिर ग्राउंड नहीं है, खेलों का बड़े मसले मसाइल आ, ग्राउंड नहीं है बल्दियाती इलाकों के विच। हस्पताल छोटे छोटे डिस्पेंसरी वगैरह वो नहीं है, कोई डिस्पेंसरी की मतलब दवाइयाँ नहीं है मुहैया नहीं हैगियाँ। इस वास्ते बल्दियाती इलैक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट के भी बल्दियाती इलैक्शन खुदा बल्दियाती इलैक्शन करवाएं। यानी आप ज़रूरी समझते हैं? हाँ बहुत ज़रूरी। इसमें कहीं ना कहीं MNAs भी कतराते हैं कि आपकी जो पावर है वो निचले तबके तक ना जाए, जो लोकल है एक UC का CC का उसके हाथ तक पावर ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर वो तो कहेंगे कि हम तो जी महदूद होकर रह गए, हमारे पास इख्तियार नहीं है। नहीं ये गल नहीं हैगी, गल उन्हें सो पावर होर ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हर बंदे ना उन्होंने MNA MP नहीं मिलना, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MNA MP ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ MNA MP ਦੇ ਸਗੋਂ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। अच्छा, होने चाहिए, ज़रूरी है। हाँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अशरफ जी। अच्छा, कितना को ज़रूरी समझते हैं बल्दियाती इदारे एक आम पाकिस्तान, एक आम शहरी, एक जो मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, इसकी तरक्की के लिए? क्योंकि MPs MNAs ज़ाहिर सी बात है वो निचले लेवल तक हर किसी को तो नहीं जानते या हर किसी के मसाइल से उतने आगाह नहीं है जितना वहाँ का एक मकामी शख्स आगाह है। कितना को ज़रूरी समझते हैं और कितने जल्द को बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्दियाती नुमाइंदे लोकल सतह ते बहुत फ़ायदेमंद आवाम वास्ते होंदे ने। छोटे छोटे आबादियां दे विच स्कूल कौंसलां बनदियां ने, अपना जड़ियां गलियां महल्लियां दे प्रॉब्लम ने, सीवरेज टुट जाते हैं या करंट कोई महल्ले दे झगड़े च मसाइल जड़े ने वो बल्दियाती नुमाइंदे मुकामी सतह ते फाहमो तफहीम करा के इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। अगर बल्दियाती नुमाइंदे ना मौजूद होन, क़यादत ना मौजूद होवे
ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ MNA ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੌਰਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। MPA MNA ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ MNA ਚੌਧਰੀ ਆਬਿਸ਼ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੀਆਂ ਤਾਹਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਨਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਰਵੇ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਬਲਦਿਆਤ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ PTI ਦੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਮੁਕਾਮੀ MNA ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਸ਼, ਤੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। बड़ी उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप समझते हैं कि यहाँ के जो अवाम के मसाइल हैं वो तभी हल होंगे जब बलदियाती नुमाइंदगान जो है वो उनमें से मुंतखब होंगे, क्योंकि वही उनके मसाइल जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बलदियाती नुमाइंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬਲਦਿਆਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵੇ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ MPA ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦਿਆਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ जल्दी कराउन, आवाम मुंतखब नुमाइंदे करे अपने और वो आवाम की खिदमत कर सकन। अच्छा, इससे पहले हम जब आखिरी दफ़ा 2015 में जो है वो बलदियाती इंतखाबात हुए, उसके बाद जो है वो दीगर सूबों में तो इंतखाबात होते रहे, लेकिन पंजाब में नहीं हो सके। तो इसमें क्या आप वजह समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है, क्यों आखिरकार जो है वो हुकूमतें बलदियाती इंतखाबात करवाने की तरफ जाने से जिस तरह के ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਲਮ 'ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦਿਆਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਟੈਨੂਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਲੋਕਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, PTI ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਮੁਤਹਿਦਾ, इंशाल्लाह असी हर वक्त नाल पार्टी दे। आप समझते हैं कि जो बलदियाती इदारों को अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, उनको पहले ख़त्म कर दिया गया, उसके पीछे यही वजह थी कि उनमें से जो है वो मेजॉरिटी अक्सरियत का ताल्लुक नून लीग से था, और ज़ाहिर सी बात है कि जिस बेस पर इन्होंने वोट लेना होता है वो होता है तरक्याती काम, तरक्याती स्कीमें। अगर वो नून लीग की याद में चली जाती तो वो बआसानी जो है वो अपना वहाँ में मैंडेट बना सकती। जी जी, मैं ये अर्ज़ कर रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादती की थी, उन्होंने मुकम्मल करन देना चाहिए सी, 2 साल का बकाया पीरियड भी यानी मुकम्मल करने देना चाहिए था। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, कह रहे हैं कि बलदियाती नुमाइंदों जो मुंतखब हुए 2015 में, उसके बाद जो है वो उनके साथ यही नाइंसाफ़ी थी कि उन्हें अपना टेन्योर जो है वो पूरा ही नहीं करने दिया गया। जो बलदियाती इदारे या जो बलदियाती हुकूमत मुंतखब होकर आए, उन्हें अपना टेन्योर पूरा करने देना चाहिए ताकि जो है वो तरक्की, चूँकि ज़ाहिर सी बात है जो बुनियादी ज़रूरियात, हम अपने हर प्रोग्राम में बात यही करते हैं और बार बार ये बात करते हैं कि लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो है वो फ़राहम करना निहायत ज़रूरी है। तो बुनियादी ज़रूरियात जो है वो बलदियाती नुमाइंदे फ़राहम कर सकते हैं, जो कि हमारी बदकिस्मती है कि कई सालों से पंजाब में मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखेंगे, मज़ीद लोगों से भी बातचीत करने का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो बलदियाती नुमाइंदगान जो मुंतखब हुए 2015 में पंजाब से, उनसे जो है वो कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस पर्सन मौजूद थे जिन्होंने जो है वो चंद साल बलदियाती
नुमाइंदा जो है वो सर्व की अपनी खिदमत, और उनके बाद जो है उनकी आपने बातचीत सुनी। उनके बाद हमारे साथ इस वक्त अवाम मौजूद है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है, एज़ अ कॉमन सिटीज़न हम इनसे जानेंगे कि बल्दियाती इदारे के मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं कि वो इनके लिए कितने ज़रूरी हैं, इनके मसाइल हल करने के लिए जो है वो बल्दियाती इदारे कितने ज़रूरी हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुछ शहरी, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, मैं समझता हूँ वो निचले छोटे लेवल तक जो है वो पावर प्रोवाइड करता है। इसमें आपको जो छोटे छोटे कामों के लिए दरख्वास्तें जो है बड़े बड़े ऑफिस में और बड़े बड़े दरख्वास्तें ऑफिस को जो है जमा करवानी पड़ती हैं, वो आप नीचे लेवल तक जो है वो आप उसको बेहतर हल कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गया, सफाई सुथराई हो गया, वासा का हो गया, दीगर काम मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि जो आप बेहतर तरीके से जो है वो आवाम में हल कर सकते हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि इससे जो ग्राउंड लेवल पे जो अच्छा बंदा काम कर रहा होता है वो आप बड़े जो लीडरशिप की नज़र में भी आता है, और जो है इसकी वजह से जो है न्यू लीडरशिप जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, जो उनको मौका मिलता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि हम अमूमन देखते हैं कि मकामी लेवल पर, मकामी सतह पर जो है वो एक सीसी में अगर एक PMLN का या PTI का या किसी भी जमात का एक जो है वो चेयरमैन है, तो वो अपनी सीसी में अगर काम करता है तो उसका वोट बैंक वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, ज़ाहिर सी बात है, और वो फिर अपने MP MNA के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है, अपनी पार्टी के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। तो हर हुकूमत के लिए बल्दियाती इदारे फ़ायदा तो देते हैं, उनको फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं अपने जो है वो मंशूर के हवाले से, अपने नैरेटिव के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्यों आखिरकार हमें ख़ास तौर पर पंजाब में हुकूमतें ये अमल कराने से कतराती हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि सिंध में KPK में बल्दियात होता है और उनको पूरे 5 साल का टाइम मिलता है, और हमारे साथ पंजाब में हर साल जो है, हर बार जो है वो ज़्यादती होती है इनके साथ। इनको 5 साल जो है वो कंप्लीट नहीं करने दिए जाते। जो भी कोई न्यू गवर्नमेंट आती है पंजाब की जो है वो इसको जो पहले मुंतखब होते हैं उनको वो ख़त्म करके, और जो है सिस्टम ये मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। देखें ना, इससे जो है बल्दियात से आप आवाम को कितना फ़ायदा है। अब रोड के अलावा जो गली मोहल्ले हैं, घर घर में जो सफाई सुथराई का जो काम है वो करना होता है, उससे देखें ना, ये बल्दियात की वजह से वो बेहतर तरीके से जो है उसको हल कर सकते हैं। ज़रूरी है आवाम के जो है वो बुनियादी मसाला। जी बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अरशद। अच्छा, मोहम्मद अरशद साहब, कितने को ज़रूरी समझते हैं बल्दियाती इदारे, और क्यों जो है वो हुकूमतें इनकी तरफ जाने से कतराती हैं, सिस्टम इनकी तरफ जाने से कतराता है? असल च गल ये है कि जैनुअन हकीकत ये है कि जिस तरह बीबी मरियम ने रमज़ान पैकेज दिता ना, ये थ्रू आउट होना चाहिए सी बल्दियात दे अंडर, क्योंकि हर गली और हर महल्ले च इंसान नूं पता वा, चेयरमैन नूं पता वा कि इस गली दे विच 2 या 3 मुस्तहिक आ, उस तो पिछली गली च 2 या 3 या 4 मुस्तहिक आ। होया ये है कि जिन्हों असीं अपनी जमात दी असीं ये भी कहांगे कुताही आ कि इन्हां नूं एज ए चेयरमैन जिहड़े जित्ते सी ना, भावें साबका हो गए सी, उन्हां दे थ्रू मामूलात सारे ना तय करने चाहिए सी। अच्छा, उहदे विच होया ये है कि नादरा दे थ्रू लिस्टां आईयां वा, कई ऐसे लोग आ जिहड़े मुस्तहिक नहीं सी, उन्हां नूं मिल रहे आ, और कई मुस्तहिक मिस हो रहे आ। लिहाजा बल्दियाती इलेक्शन होंदा रमज़ान पैकेज में जो रमज़ान पर रिलीफ दिया जाना है, चीज़ें जो है वो फराहम की जानी है गरीबों को, वो जो है वो थ्रू आउट बल्दियाती इदारों के होता है, या जो CC का चेयरमैन होता, वाइस चेयरमैन होता, उसके ज़रिए से होता, ताकि जो है वो, चूँकि उनको तो पता होता है, वो निचले तबके तक वो चीज़ डिलीवर कर सके। इसमें फिर कहीं ना कहीं आप फॉल्ट जो है वो अपने जो यहाँ से सरकर्दा हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका समझते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ, ये वास्ते ये हो सकता सी कि हर चेयरमैन असी कोई भी जो चेयरमैन आ ये नहीं कह बदनीयत आ, लेकिन वो उत्ते चैक एंड बैलेंस वास्ते एक सरकारी अमला हुंदा, उन्हां दी मौजूदगी च वो तकसीम करदे, वो ज़्यादा बेहतर सी। तो कितना कोई आपको बेहतरी के चांसेस नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पर बल्दियाती इदारों में जो है वो नून लीग, चूँकि पिछली दफ़ा भी मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था जब जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो इस दफ़ा भी आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का चूँकि आगाज़ हो चुका है तो इसमें बल्दियाती इंतखाबात होंगे? हाँ इंशाअल्लाह ताला, और होने चाहिए। असल च गल ये कि बल्दियात ही बुनियाद होंदी है, ग्रास रूट लैवल ते इन्हां नहीं मजबूत करना वा गौरमेंट नूं। गौरमेंट उपर वाली पंजाब होए या मरकज़, ये किन्नी देर चलदी है, किस तरह क्राइसिस का शिकार होना वा, जिद्दां सख्त ओपोजिशन आ और हर गल ते एहतजाज कर रही है, ये बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होणगे और वही रिलीफ दे सकदे अपने। अच्छा,
जैसे कि आपने बात किया कि ये ग्रास फूड लेवल या ये ग्राउंड लेवल तक जो है वो जाकर लोगों के मसाइल हल करते हैं, मसाइल सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट जो आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ जो है अगर वो मुल्की लेवल पर जो है वो नेशनल लेवल पर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो वो सारे प्रोजेक्ट्स भी रुक जाते हैं। अगर वो इसकी निस्बत अगर बल्दियात के पास होते या बल्दियाती इदारे जो है वो फंक्शनल रहते तो उनमें रुकावट ना आती ना, तो इससे भी तो फिर ज़ाहिर सी बात है आवाम को तकलीफ पहुँचती है। हाँ बिल्कुल पहुँचती है। अगर 5 साल पीरियड पूरा हो जाए ना किसी बल्दियात च चेयरमैन का, और इंशाअल्लाह ताला लिमिटेड गलियां लिमिटेड महल्ले होंगे आ, और पूरी तरह फोकस करके उन्होंने कामयाबी दिलाने अपनी लीडरशिप नूं, वो तो पूरा वर्क करेंगे यानी इंशाअल्लाह। आपको इम्कानात लगते हैं? इंशाअल्लाह आपको कितने इम्कानात को लगते हैं कि PMLN के दौरे हुकूमत में भी पिछली दफ़ा इंतखाबात हुए थे बल्दियाती, और इस दफ़ा भी क्या आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात PMLN के दौरे हुकूमत में होंगे? जी हमेशा जो है वो PMLN ने ही इसको सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह अब भी उम्मीद है कि PML जो है वो बल्दियात करवाएगी। ठीक है नाजरीन, हमारे साथ शहरी हजरात मौजूद थे जिन्होंने हमसे बात की है, और वो यही कहते हैं हमें नज़र आए हैं कि बल्दियाती इदारे जो है वो निहायत ज़रूरी हैं आवाम के, लोगों के जो है वो मसाइल हल करने के लिए। और ज़ाहिर सी बात है मसाइल तभी हल होंगे, मामलात तभी बेहतरी की तरफ जाएंगे जब ऐसे हुकूमत आएगी या ऐसा सेटअप आएगा जो बिल्कुल निचले तबके से उठ कर आएंगे। और ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी हैं बल्दियाती इंतखाबात। अब हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द जो है वो अवामी हुकूमत की तरफ लाया जाए, और MPs MNAs की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून बनाने की, वो सिर्फ वहाँ तक जो है वो महदूद रहें, और अवाम को जो है वो ताकत दी जाए और अवाम को जो है वो पावर दी जाए कि वो अपने मसाइल जो है वो हल कर सके। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हम जो 2015 में मुंतखब होने वाले बल्दियाती नुमाइंदगान थे उनसे कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है हमारे MNAs MPAs जो हैं ये लेजिस्लेटर्स हैं, इन्होंने जो है वो लॉ मेकिंग करनी है, असम्बली में बैठकर कानून बनाने हैं, ना कि लोगों के जो है वो गली महल्ले और ये दुरुस्त कराने। और हमारी यहाँ पर नाकामी है कि बल्दियाती हुकूमत या जो बल्दियाती इदारे हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, जिनको आम अवामी नुमाइंदा और एक हकीकी नुमाइंदा कहा जाता है, वो कई साल से जो है वो अपने ओहदों पर ही नहीं आ सके हैं और बल्दियाती इलेक्शंस ही नहीं हो सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीन भट्ट साहब, सबका डिप्टी मेयर हैं। इनसे जो है वो हम जानते हैं कि कितना जो है वो कोई बल्दियाती इदारे ज़रूरी हैं, कितने बल्दियाती इदारे आम आवाम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि कितने ज़रूरी हैं बल्दियाती इदारे, और कितनी कोई आम आवाम की इसमें जो है वो तरक्की पोशीदा है। अगर एक बल्दियाती निज़ाम आता है तो आम आदमी को इससे कितना फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह इंसान के लिए जीने के लिए सांस की ज़रूरत है ना, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये बल्दियाती इदारे मुल्क की बेहतरी के लिए, शहरियों की बेहतरी के लिए और गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए ये अहम जुज़ है। अहम जुज़ इसलिए है कि जो चेयरमैन होता है इलाके का, उसके साथ वाइस चेयरमैन होता है, उसके साथ काउंसलर होते हैं, तो ये 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। 24 घंटे इसलिए अवेलेबल होते हैं कि वो उसी इलाके में रहते हैं, उनको मिलना, उनके पास जाना, पहुंच बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं जो अब वज़ीर आला पंजाब जो नून लीग की हमारी मरीम साहबा बन चुकी हैं, मेरी वस्तगी भी नून लीग से है, तो मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा भी करूँगा, बल्कि फैसलाबाद के तायरों की तरफ से, फैसलाबाद की आवाम की तरफ से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अब बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अवामी मसाइल का जो एक हकीकी हल है वो बल्दियाती इदारों में ही पोशीदा है। अच्छा, साथ में हम ये देखते हैं कि जो फ़ंड्स हैं वो कितने कोई महफूज रहेंगे अगर गली महल्ले या इस तरह की जो तरक्याती स्कीमें आती हैं, अगर वो एक MPA MNA के पास हो, या उसकी निस्बत अगर वही जो बल्दियाती बजट है या जो एक UC का, एक CC का बजट है, वो अगर वहाँ के मुंतखब चेयरमैन हो गया, मेयर हो गया, डिप्टी मेयर हो गया, उनके पास हो, तो वो कितना कोई उसको बेहतर तरीके से जो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, असूली तौर पर तो जो MNAs MPs हैं ना, वो कानून साजी करनी चाहिए और उनकी ड्यूटी भी यही है। लेकिन होता क्या है कि जब गवर्नमेंट आती है, नून लीग की आती है, या कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो ये चाहते हैं कि ये जो फंड हो ना, MNA भी चाहते हैं हमारे पास रहें, MP भी चाहते हैं हमारे पास रहें, लेकिन इस तरह ये काम नहीं चलता।
क्योंकि इसलिए नहीं चलता कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, लेकिन जो मेयर और डिप्टी मेयर और चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन होते हैं, जो कौंसल होते हैं, इनको लगाने की भी आसानी होती है और आवाम की जो डिमांड होती है कि फ़लाँ गली हमारी बननी चाहिए, उस वो करीबी से वो उनको जानते ही होते हैं वाकई ये गली बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। MNA MP को क्या पता है कि ये गली बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। इसलिए जो फ़ंड बल्दियात का होता है ये बल्दियाती नुमाइंदों को मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि जो फ़ंड जो मिलता है चेयरमैन को या डिप्टी मेयर को या मेयर को, वो लगता नज़र भी आता है, उससे आवाम में खुशहाली भी आती है। उसमें जो अप्रोच मैंने पहले भी कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को मिलना आवाम के लिए बहुत आसान है बनिस्बत MP MNA तो है वो कभी कभी जो है वो हल्के में आते हैं, उनके पास एक वसी हल्का होता है, और एक जो CC का मेयर होता है, डिप्टी मेयर होता है, वो वहाँ पर एक सिंगल पर्सन को भी जानता होता है, उसके मसाइल से आगाह होता है कि इसको किस चीज़ का मसला दरपेश है। तो फिर क्यों आखिरकार हम ये भी देखते हैं कि इन सब के बावजूद भी जो है वो हुकूमतें कतराती हैं बल्दियाती इदारों की तरफ जाने से, ये क्यों होता है? ये हुकूमतें नहीं कतराती, जो हमारे MPs होते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि ये बल्दियाती इलेक्शन ना हो। वो ये समझ लेते हैं, खुद ही समझ लेते हैं कि अगर ये इलेक्शन हो गया हमारी अहमियत कम हो जाएगी, हमारे पास फ़ंड नहीं आएंगे। हालांकि ये ऐसा नहीं है। MPs का फ़ंड MP को मिलना चाहिए, MNA का फ़ंड MNA को मिलना चाहिए, और जो बल्दियात का फ़ंड है बल्दियाती इदारों को मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना तो जो हुकूमतें वक्त होती है उनकी भी बाजू मजबूत होते हैं। देखें, जिस तरह मैं साहब का डिप्टी मेयर हूँ, जब मैं डिप्टी मेयर बना तो फैसलाबाद सिटी में कोई इंक्रोचमेंट नहीं होती थी, कोई पार्किंग का मसला नहीं होता था, कोई भी शहर में कोई प्रॉब्लम वासा का मसला होता था या पार्किंग प्लाजा बनाने का मसला होता तो सब लोग हम इसको मतलब जो भी शहर की डिमांड होती थी, चाहे शहरियों की हो, चाहे ताजरों की हो, या रहायशियों की हो, तो हम बआसानी से मिलकर आगे तक ये डिमांड पहुँचा देते हैं। तो MNA MP ये नहीं पहुँचा सकते। देखिए, वो भी हमारे भाई हैं, ये हमारे उनसे बाहर नहीं है, लेकिन वो भी अवामी नुमाइंदे हैं। मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन उनको भी चाहिए कि हमारी बल्दियात की मुखालफत ना किया करें, हम भी उनके बाजू हैं। इसलिए मैं वक्त गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब से जो मरीम नवाज़ा साहब बन चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म भी बन जाएगा हमारा नून लीग का। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाजू मजबूत हों, आपके हाथ मजबूत हों और शहर को आप तरक्की देखना चाहते हैं, शहरियों में खुशहाली देखना चाहते हैं, ताजरों में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर ये बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, ताकि जो शहर के मसले मसाइल हैं बआसानी आप तक पहुंच सकें और आप जो फ़ंड बल्दियात का होता है वो बल्दियाती नुमाइंदों को भी मिले। जिस तरह मैं एक मिनट मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैंने पहले डिप्टी मेयर था तो हमने सबसे पहले नून लीग के दौर में पार्किंग प्लाजा तमीर करना शुरू हो गया था। जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई अभी तक वो प्लाजा बंद पड़ा है। तो इसलिए जब बल्दियाती इलेक्शन होगा, हम मुंतखब हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह सबसे पहले ये जो पार्किंग प्लाजा है, जो फैसलाबाद शहर की सबसे ज़रूरी चीज़ है, अहम जुज़ है। तो आप देखें, आप बेशक 41 की गाड़ी लेकर आएँ, या हमारी माएँ बहनें जो बाज़ारों में आती हैं उनका शॉपिंग करने के लिए कोई जगह नहीं होती, ना गुजरने के लिए जगह होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि MNA MP बन जाएं, हम उनकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन वो भी हमारी मुखालफत करें। तो वज़ीर आला पंजाब से हम तालबा करते हैं, फैसलाबाद की पूरी अवाम की तरफ से, कि फौरी तौर पर आप बल्दियाती इलेक्शन कराएँ, ताकि आपकी पहचान बल्दियाती इलेक्शन के जो नुमाइंदगान होते हैं अगर अच्छा काम करेंगे तो नून लीग की भी बेहतरी होगी, या नून लीग के अलावा जो भी गवर्नमेंट होगी उसकी भी बेहतरी होगी। बिल्कुल नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि जो एक UC का एक CC का जो है वो मेयर होता है, वो जब अपने हलके से अपने उस UC से CC से मुंतखब होकर जाता है तो वहाँ पर सिंगल पर्सन के मसाइल से भी आगाह होता है, एक फ़र्द वाहिद का उसके मसले का भी पता होता है। लेकिन उसकी निस्बत हम देखते हैं अगर MPA हो, MNA हो, इसके पास बड़ा वसी हलका होता है और इसको कवर करने में जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक सिंगल पर्सन जो है उसके लिए ये नामुमकिन है। तो अगर चीज़ों की बेहतरी हम चाहते हैं, अगर मामलात की हम बेहतरी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें
اپنی بنیادی سہولیات جو ہے وہ بہتر طریقے سے ملیں اور مناسب طریقے سے ملے، تو اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو فال کریں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا ہے کہ بلدیاتی ادارے اگر فال کر بھی دیے جاتے ہیں تو ان کو بجٹس نہیں جاری کیے جاتے، ان کو جو ہے وہ ترقیاتی اسکیموں پر جو ہے وہ کام کرنے سے جو ہے ان کے کام میں خلل ڈالا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کے کام میں خلل نہیں بلکہ ایک عام شہری، ایک عام سٹیزن کے کام میں جو ہے وہ خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہاں پر امید ضرور کی جاتی ہے کہ جو نئی آنے والی حکومتیں ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے بارے میں ضرور سوچیں گی۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ